I really thank God for this opportunity what God has given me. प्रभु का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ ये मौका जो परमेश्वर ने मुझे दिया उसके लिए। It was a long desire to come and fellowship with you all. और मेरी बहुत पुरानी बहुत सालों से ये इच्छा थी कि मैं बहुत समय से मेरी इच्छा थी कि मैं आपके साथ संगति करूं। But it was not happening, and but this time God has made it possible, and I can come and have fellowship with you. और ये नहीं हो पा रहा था पर इस समय ये संभव हुआ और मैं आपके साथ में आकर संगति कर सकता हूँ। And God is so good that even He give me the opportunity to share from the Word to you. और प्रभु भला है और ये मौका प्रभु ने मुझे दिया कि मैं वचन से आपके साथ बांट सकूं। Really, God is a good God, और सच में परमेश्वर हमारा एक भला परमेश्वर है। and He has given us His Holy Spirit. उसने हमें अपना पवित्र आत्मा दिया है। There is different gift, but one Spirit. अलग अलग वरदान है लेकिन आत्मा एक ही है। So when brother told me that from main message I have to speak, और जब मुझे बताया गया कि मुझे मुख्य संदेश को देना है, and I was thinking like what I should speak, मैं सोच रहा था किस बारे में मैं बांटूं। and means how God want to relate everything on that day, what He wants to speaks to His children. और परमेश्वर उस बातों को जोड़ता है सारी चीजों से कि उसके बच्चों से वो क्या बात करना चाहता है। So while I was preparing the word, जैसे मैं उस वचन की तैयारी कर रहा था, so I was not knowing the memory verse. Actually, I forgot about the memory verse, और but the मुझे memory verse was about that subject only what I want to speak. और मेमोरी वर्स मुझे याद नहीं था पिछले सप्ताह का, लेकिन जो आज मैं बांटने जा रहा हूँ वो मेमोरी वर्स के साथ ही एक साथ साथ जैसा ही है। And similar to today's memory verse, the memory verse was from First Corinthians 9:27. और जैसे आज का जो मेमोरी वर्स था वैसा ही वचन पहला कुरिन्थियों 9:27 में जैसे लिखा And गया there it है। says, "But I discipline my body and make it my slave, so that after I have preached to others, I myself will not be disqualified." और पहला कुरिन्थियों 9:27, परंतु मैं अपनी देह को मारता कूटता वश में लाता हूँ, ऐसा न हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। So at home, I will always practice with my children during the family prayer time. I will just ask them to say what is the memory verse. और घर के अंदर हम ऐसा अभ्यास करते हैं कि बच्चों को मैं पूछता हूँ कि मेमोरी वर्स क्या है अक्सर। And when they say the memory verse, that time I ask them what God has spoken to you through this memory और जब verse. मेमोरी वर्स मैं उन बच्चों को पूछता हूँ, मैं उनको पूछता हूँ कि प्रभु ने आपसे इस मेमोरी वर्स से क्या बात कर रहा And है। one of the day when I was asking, this verse really came as a warning to me. और जब मैं एक दिन ऐसे ही पूछ रहा था, ये वचन मेरे लिए एक चेतावनी के रूप में मेरे सामने आता है। That God has given me the opportunity now to share from the word. He has given me the opportunity to be His servant, to be an elder in Nasik. So I would gone carried away and may have forgotten the what God has taught me and bring me unto there. Maybe it's possible that I will be get carried away, and I think that I am sharing the word, and I will not go back to the sins what I was committing in my body. और अक्सर मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कि मैं वहां पर एक जिम्मेदारी मुझे दी है एक एल्डर के रूप में, परिवार के रूप में वचन बांटने की सारी चीजें, लेकिन कई बार उन बातों को करते करते मैं इन सारी चीजें जो यहाँ पर इस वचन में लिखी गई है उन सारी चीजों को हल्के से शायद लेने लग जाता हूँ। But this word came as a warning to me. और एक चेतावनी के रूप में ये वचन मेरे लिए आता है। The last part of it says, after I have preached to others, I myself will not be disqualified. औरों को प्रचार करके मैं किसी रीति से निकम्मा स्वयं न ठहरूं। And today's memory verse was that God's will is that I should abstain from sexual और आज immorality. का जो मेमोरी वर्स जो हमने देखा कि परमेश्वर की इच्छा है कि हम व्यभिचार के पाप से बचे Now, रहे। before I was listening to these words that the brothers were preaching, and in my heart, I have the desire to be abstain from it. But और practically, I was defeated by it, and I was not knowing how to overcome it. और कई बार मैंने इस वचन से भाइयों को बात करते हुए सुना है, देखा है कि कई बार, लेकिन मैंने इसको सुना है, जानता हूं, लेकिन व्यवहारिक रूप से मुझे नहीं समझ आ रहा था कि मैं इसको किस रीति से इससे बचूं मैं। I have the desire to live a holy life, और but मेरे I was defeated continuously. मेरे अंदर एक इच्छा तो है कि मैं एक पवित्र जीवन को जीऊं, लेकिन निरंतर मैं एक पराजित जीवन को जी रहा था। And the war was going on inside of और me. मेरे अंदर एक युद्ध मानो चल रहा था। And the time used to come where I used to think, have I done the right thing? Means accepting the Lord as my Savior. और कई बार ऐसा समय आता था कि क्या मैंने सही काम किया है यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करके। And I was always condemned by the evil one that I am not the righteous guy. And whenever I used to get defeated,
I used to condemn और myself. कई बार जब मैं पूरी तरह से गिर जाता था, हार जाता था, तब मैं मुझे पूरी तरह से ऐसा दंडित महसूस होता था कि मैं एक धर्मी व्यक्ति नहीं हूं। But thank God that God has given us a spiritual father, Brother Zach Poonen. और प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं कि एक आत्मिक पिता भाई जैक हमको दिया है प्रभु ने। So after all, we would have, especially the youngsters, would have this desire to live a holy life. और खास करके हम जवान, हम सभी के अंदर एक इच्छा होती है कि हम एक पवित्र जीवन प्रभु के लिए जिए। But how to live it, Brother Zach has explained it in different messages of his. और लेकिन इस जीवन को कैसे जिया जा सकता है, भाई जैक ने अलग अलग संदेशों के द्वारा इसको प्रस्तुत किया है। And few things I understand, and what I was reminded by this verse, I want to share with you. और कुछ बातें जो मैंने प्रभु उनके वचनों से सुनी थी और मुझको और एक बार स्मरण दिलाया गया, उसको मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ। That before overcoming the sexual immorality, or before abstaining from it, I have to discipline my body first. और इससे पहले कि मैं व्यभिचार के पाप से बचूं या उसके ऊपर विजय पाऊं, सबसे उसके पहले आता है कि मुझे मेरे शरीर को अनुशासित करना है। Like it says in 1 John 2 verse 16. पहला यूहन्ना 2:16 में जैसे लिखा है, For all that is in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the boastful pride of life is not from the Father, but it is from the world. क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। So these three areas I have to really discipline my body in, so that I could overcome the sexual sins in my life, and I could abstain from the sexual और immorality. इन 3 क्षेत्रों जो यहाँ पे लिखे गए, उसमें मुझे अपने आप को अनुशासित करना है, ताकि जो वचन हमने पढ़ा कि उस व्यभिचार की वासनाओं से हम बच सके। So first it says that it's lust of the eyes. और यहाँ पे पहला चीजें लिखा है कि आंखों की अभिलाषा। So I will read from Matthew 6 verse 22 to 23. और मत्ती उसका 6 अध्याय 22 और 23। There it says the eye is the lamp of the body. So then if your eye is clear, your whole body will be full of light. But if your eyes is bad, your whole body will be full of darkness. If then the light that is in you is darkness, how great is the darkness. शरीर का दिया आंख है, इसलिए यदि तेरी आंख अच्छी है तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला होगा, यदि तेरी आंख बुरी है तेरा सारा शरीर भी अंधियारा होगा। इस कारण वह उजियाला जो तुझ में है यदि अंधकार हो तो वह अंधकार कैसे बड़ा होगा। See, the eyes is the lamp of the body. So keep my body pure. First I have to keep my eyes pure. और जैसे लिखा है कि आंख मेरे शरीर का दिया है, यदि मेरे शरीर को मुझे पवित्र रखना है, सबसे पहले मेरी आंखों को मुझे पवित्र या शुद्ध रखने की जरूरत है। Practically, how can I keep my eyes pure? कैसे मैं अपनी आंखों के व्यवहारिक रूप से, प्रैक्टिकल रूप में मैं कैसे इसको शुद्ध रख सकता हूँ। So it says in Matthew 5 verse 28 to 29. और मत्ती 5:28 और 29 में लिखा है, But I say to you that everyone who looks at a woman with lust for her has already committed adultery with her in his heart. If your right eye makes you stumble, tear it out and throw it from you, for it is better for you to lose one part of your body than for your whole body to be thrown into hell. परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। यदि तेरी दाहिनी आंख तुझे ठोकर खिलाए, उसे निकाल कर अपने पास से फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे अंगों में से एक नाश हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में न डाला जाए। And when I was just born again and I was a new believer, और जब मेरा नया जन्म हुआ था, मैं एक नया विश्वासी ही था जब, and after reading this verse, I was thinking like, how can I remove my eye and throw it away? और मैं नया विश्वासी था, मुझे लगता था कि कैसे मैं अपनी आंखों को निकालूं और उसको फेंकूं। And means it's a very harsh teaching. How can I do that? और ये तो बहुत ही कठोर शिक्षा है, कैसे मैं इसको कर सकता हूं। But when Brother Zach explained it, I was really blessed by it. और भाई जैक ने इसकी जिस प्रकार समझाया, मैं बहुत ही आशीषित हुआ। That removing the eye means what? आंखों को निकालना, उसका मतलब क्या है। So what I am looking like, Brother Prashant also tell that what I am watching on the TV or watching on the computer, or some hoardings are there on the road aside. What I should do, removing the eye means is, as soon as I see a tempting picture, a tempting movie, or some bad sin is immediately I have to move my eyes
from that. और मुझे please. क्या करना है कि जब कभी मेरे कंप्यूटर के अंदर या किसी होर्डिंग के अंदर जहां हम बड़े चलचित्रों को देखते हैं या हमारे मोबाइल या हमारे लैपटॉप के अंदर जब कभी ऐसी चीजें देखते हैं जहां पर हम आंखों से पाप करने वाले उस वासना भरे विचार में पड़ने वाले तुरंत ही जब हम देखते हैं तुरंत ही हमें वहां से अपनी आंखों को हटाना है। This is the meaning of removing your right eye and throw it away. और इसका मतलब यही होता है कि हमें अपनी आंख को दाहिनी आंख को वहां से हटाना या उसको खींच कर निकालना। And I was really blessed by this message from Brother Zach. और भाई जैक के संदेश से मैं बहुत ही आशीषित हुआ था। And I start practicing it in my personal life. मैंने अपने व्यवहारिक जीवन में अपने व्यक्तिगत जीवन में उसका अभ्यास करना आरंभ किया। When I was alone जब मैं अकेला था in Qatar for 14 years, I was alone. My family was here. और मेरा परिवार यहाँ पे था, कतर के अंदर 14 साल में अकेला रहता था। And I got a single room where I used to stay alone. और जब मैं रहता था वहां पर मेरा एक अकेला एक सिंगल रूम था जहां पर मैं अकेला रहता था। And I used to be tempted to watch pornography. I used to be tempted to watch dirty things, dirty pictures. और मुझे बहुत ही प्रलोभन होता था कि वहां पर मैं जो अश्लील बातें हैं, पोर्नोग्राफी है या अश्लील चित्र जो है उसको मैं देखूं, इसको प्रलोभन मुझे होता था। Before it was very easy for me to fall down into it. और उसके पहले उसके अंदर गिर जाना मेरे लिए बड़ा आसान हो जाता But था। after listening to Brother Zach, लेकिन भाई जैक को सुनने के बाद the Holy Spirit will always convict me and bring me to this verse that remove your right eye and throw it away. पवित्र आत्मा मुझे हमेशा उसको बहुत दिलाता, इस वचन के आधार पर बहुत दिलाता था कि तुरंत उस बात के अंदर अपनी दाहिनी आंख को निकाल कर नीचे उसको निकाल दे। And I was really able to practice it with the help of the Holy और Spirit. पवित्र आत्मा की सहायता से इसका अभ्यास करने में मैं कर पाता था। And it really helped me to abstain from sexual immorality. और इससे मेरी सहायता मिली कि मैं उस वासना भरे पाप जो है लैंगिक पाप से बच सकूं। Or second things what we do with our eyes is और दूसरी चीज जो अपनी आंखों के साथ हम जो करते हैं वो ये है, we immediately start judging others. हम अन्य लोगों को बड़े जल्दी से न्याय करना आरंभ कर देते हैं। Whenever we see something wrong with our eyes in other people, we start judging them. किसी भी व्यक्ति अन्य लोगों के अंदर जब हम कोई बुरा गलत देखते हैं तुरंत उनका न्याय करना आरंभ कर देते हैं। But Luke 6:42 says, और लूका 6:42 में लिखा है, or how you can say to your brother, brother, let me take out the speck that is in your eye, when you yourself do not see the log that is in your own eye, you hypocrite. First take the log out of your own eye, and then you will see clearly to take out the speck that is in your brother's eye. और जब तू अपनी ही आंख का लट्टा नहीं देखता तो अपने भाई से कैसे कह सकता है कि भाई ठहर जा, तेरी आंख से तिनके को मैं निकाल दूं। हे कपटी, पहले अपनी आंख का लट्टा निकाल, तब जो तिनका तेरे भाई की आंख में है भली भांति देखकर निकाल सकेगा। And when I used to see some other brother sinning, I used to immediately judge him, or in other words, I can say I will start comparing myself to that brother. जब कभी किसी भाई को मैं देखता था कि बड़े आसानी से वो पाप में गिर जाते थे, उसके साथ मैं अपनी तुलना करके उस भाई को मैं देखने लग जाता था, न्याय करने लग जाता था। See, I never used to work on my sin, but I used to compare myself to others. मैं अपने पाप जिसमें मैं गिरता उस पर मैं काम नहीं कर रहा, लेकिन अपनी तुलना अन्य लोगों से करने लग जाता हूं। But thank God for this verse also. और प्रभु का धन्यवाद इस वचन के लिए भी कि in my brother's eye there is just a speck, but in my eye it is a log. और हो सकता है दूसरे भाई के नजरों के अंदर वो तिनका है, लेकिन मेरी आंखों के अंदर एक लट्ठा दिखाई पड़ता है। So I should work on the log instead of seeing at the speck. उस लट्ठे का जो मुझे दिख पड़ता है उसके ऊपर मुझे पहले काम करना है, बजाय कि उस तिनके को मैं अन्य लोगों के अंदर देखूं। And when I started working on it, और जब मैं इस पर काम करना मैंने शुरू किया, God really helped me प्रभु ने मेरी सहायता की and stopped me now looking others with a judging eyes. और अन्य लोगों को एक न्याय करने वाली आंखों से देखने से मुझे प्रभु ने बचाया है, रोका। But instead of it, God helped me to see something good in other brothers which I can appreciate. और उसके बजाय प्रभु मेरी सहायता की कि मैं अन्य लोगों को एक सराहने की नजरों से देखूं ताकि मैं उनको धन्यवाद दे सकूं। See, Lord Jesus Christ, He met sinners, He met prostitutes, He met murderers. But there also He can find something good which He can appreciate them with. और यीशु मसीह जब था उसने पापियों को वो मिलता है, या जो वेश्या थी, जो बहुत ही जो खूनी थे, उनसे मिलता है, लेकिन उन पापों के बावजूद भी उनके अंदर कुछ ना कुछ बेहतरीन अच्छा देखता है जिसको वो सराह सकता था। We see this in John chapter 4 about the Samaritan woman. और यूहन्ना 4 के अंदर सामरी जो स्त्री, उसके बारे में हम जानते हैं। See, that woman was a sinner. वो स्त्री जो थी वो पापी थी, But Lord Jesus Christ see something good inside of her. और उसके अंदर यीशु मसीह ने कुछ अच्छा देखा। Though she was sinning continuously, she has so many husbands. उसका निरंतर वो पाप पर पाप में जी रही थी, उसके बहुत सारे उसके पति थे।
because she was searching a happiness in something else. और लेकिन वो एक आनंद को, एक खुशी को किसी चीज के अंदर ढूंढ रही थी। And Jesus Christ was knowing her heart desire, और यीशु मसीह उसके हृदय की इच्छा को जानता था, what she was seeking. किस बात की खोज वो कर रही है। Jesus Christ told him that you are seeking a happiness in a wrong place. और यीशु मसीह उस स्त्री से कहता है कि तू गलत बातों के अंदर अपने खुशी या आनंद को ढूंढ रही है, But that real happiness, that real joy is in me. लेकिन वो सच्चा आनंद, सच्ची खुशी जो है वो मुझ में, यीशु मसीह में है। But if we would be in Christ's place, यदि हम यीशु मसीह की जगह पर होते तो क्या करते? so what we would have done? हम क्या करते वहां? We would not see one thing good, the desire she has to be happy, or the desire she has to be joyful. We would have not seen that. But what she has done, we would have talked to so many of brothers or sisters at backside of her. और यदि हम उस स्त्री को होते और यहाँ यीशु मसीह की जगह पर होते तो उसके अंदर जो अच्छी इच्छा जो है, जो वो यीशु मसीह में आनंद को ढूंढ रही, उसको नहीं देखते, लेकिन जो उसने किया है उस कामों की वजह से अन्य लोगों को जाकर उसके पाप के बारे में न्याय की दृष्टि से औरों को बताते। But as Mabel's sister shared to the children that God chisel us with the hammer and He chisel us and give us a good shape. और जैसे हमने संडे स्कूल में सुना कि यीशु मसीह जो परमेश्वर जो है हमें उस हथौड़े से लेकर हमको वो काटता छाटता है। And Romans 8:29, as sister shared, that it is all that He wants us to make in the image of His Son, Lord Jesus और Christ. रोमियो 8:29 में जैसे हमने सुना कि वो सब कुछ इसलिए कर रहा है ताकि उसके बेटे यीशु मसीह की स्वरूप समानता में हमको बदल सके। So in the same way, if we are really allow God and if He make us like Jesus Christ, we would start seeing good in others instead of all the wrongs they are doing. और इसी प्रकार से यदि हम अनुमति देंगे यीशु मसीह को तो हम अन्य लोगों में न्याय करने की बजाय हम उनमें अच्छी चीजें देखना आरंभ कर देंगे। And this will help us to get victory over sexual sins, or we try to be when we are trying to abstain from sexual और immorality. इससे हमारी सहायता होगी कि लैंगिक वासना भरे पापों से हम दूर भाग सके और उस पर विजय प्राप्त कर सके। And the second thing is lust of the flesh. और दूसरी जो है वो शरीर की अभिलाषा। Matthew 26:41 says, मत्ती 26:41, keep watching and praying that you may not enter into temptation. The spirit is willing, but the flesh is weak. जागते रहो, प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में न पड़ो, आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। So here we should understand that our flesh is weak. यहाँ पर हमको इस बात को जानना है, हमारा शरीर निर्बल है। See, Paul also says it in Romans 7:18-25. रोमियो 7:18 से 25 में पौलुस भी इस प्रकार कहता है। And he's very honest about the struggles going in his life also. और रोमियो 7:18 के अंदर आगे वचन में हम देखते हैं कि पौलुस बड़ी ईमानदारी के साथ उसके संघर्षों के प्रति ईमानदार होकर वो यहाँ पर बात करता है। And he says there, for I know that nothing good dwells in me, that is in my flesh, for the willing is present in me, but the doing of the good is not. क्योंकि मैं जानता हूं कि मुझ में अर्थात मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती, इच्छा तो मुझ में है परंतु भले काम मुझसे बन नहीं पड़ते। For the good that I want to do, not do, but I practice the very evil that I do not want. क्योंकि जिस अच्छे काम की मैं इच्छा करता वह तो नहीं करता, परंतु जिस बुराई की इच्छा नहीं करता वही किया करता हूं। But if I am doing the very thing I do not want, I am no longer the one doing it, but sin which dwells in me. पर यदि मैं वही करता हूं जिसकी इच्छा नहीं करता तो उसका करने वाला मैं न रहा परंतु पाप जो मुझ में बसा हुआ है। I find then the principle that evil is present in me, the one who wants to do good. तो मैं ये व्यवस्था पाता हूं कि जब भलाई करने की इच्छा करता हूं तो बुराई मेरे पास आती है। For I joyfully concur with the law of God in the inner man, क्योंकि मैं भीतरी मनुष्यत्व से तो परमेश्वर की व्यवस्था से बहुत प्रसन्न रहता हूं, but I see a different law in the members of my body, waging war against the law of my mind and making me a prisoner of the law of sin which is in my members. परंतु मुझे अपने अंगों से दूसरे प्रकार की व्यवस्था दिखाई पड़ती जो मेरी बुद्धि की व्यवस्था से लड़ती है परंतु और मुझे पाप की व्यवस्था के बंधन में डालती है जो मेरे अंगों में है। Wretched man that I am, कैसा मैं अभागा मनुष्य हूँ, who will set me free from the body of this death? मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा। To God through Jesus, thanks be to God through Jesus Christ our Lord. So then, on the one hand, I myself with my mind I am serving the law of God, but on the other with my flesh the law of sin. हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद हो, इसलिए मैं आप बुद्धि से तो परमेश्वर की व्यवस्था का परंतु शरीर से पाप की व्यवस्था की सेवा करता हूँ। So I should understand there that my flesh is weak. मुझे इस बात को समझना जरूरी है कि मेरा शरीर निर्बल है। I should never trust on my flesh. कभी भी मेरे शरीर पर मुझे भरोसा नहीं रखना है।
And I should not go to the places where I'm easily getting tempted. और ऐसे स्थानों पर मुझे जाना नहीं है जहां पर बड़े आसानी से मैं प्रलोभन में पड़ सकता हूं। For example, if a brother is trying to get rid of his habit of drinking, और यदि एक भाई है जो एक शराबी भाई है और वो शराब की उस नशे में से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, and if he daily passes through the wine shop, और यदि वो शराब की जो दुकान है उससे वो रोज गुजरता है, will he be able to get rid of the drinking habit? और क्या वो वहां से गुजरने के बाद क्या वो उसकी जो लत जो है शराब की उससे क्या वो आजाद हो पाएगा? He will never, because he's trusting on his flesh, but the scripture says our flesh is weak. वो कभी भी उससे आजाद नहीं हो पाएगा, क्योंकि वचन लिखा है कि हमारा शरीर तो बहुत ही निर्बल है। So we should never trust on our flesh. इसलिए हमारे शरीर पर हमें भरोसा नहीं करना है। And when I realized this, इस बात को जब मैंने जाना and I start denying my flesh, जब मैंने शरीर का इनकार करना आरंभ किया, then it became easy to get victory over the sexual sins. तब मेरे लिए आसान हो गया उस व्यभिचार के पाप के ऊपर विजय पाना, And with that, other deeds of the flesh. और उसके बाद अन्य जो शरीर के जो काम है, Like it says in Galatians 5:19. और गलातियों की पत्री 5:19 के अंदर उस बारे में हम पढ़ते हैं। Now the deeds of the flesh are evident, which are immorality, impurity, sensuality, idolatry, sorcery, enmities, strife, jealousy, outbursts of anger, disputes, dissension, faction, envying, drunkenness, carousing, and think like this, of which I forewarn you, just as I have forewarned you, that those who practice such things will not inherit the kingdom of God. शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डा, मतवालापन, लीला क्रीड़ा, इनके जैसे जैसे और काम हैं, इनके विषय मैं तुमसे पहले कह देता हूं, जैसा पहले भी कह चुका हूं, कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे। So through this verse, we know now what are the deeds of the flesh. इस वचन के द्वारा हम जानते हैं शरीर के काम क्या है, So how I can overcome the deeds of the flesh and how I can get victory over it. कैसे मैं शरीर के काम के ऊपर विजय प्राप्त कर सकता हूं। The Bible says in Ezekiel 16:49, और एजेकियल की पुस्तक 16:49, there it says, behold, this was the guilt of your sister Sodom. She and her daughters had arrogance, abundant food, and careless ease, but she did not help the poor and needy. वहां लिखा है कि 49 वचन में, देख तेरी बहन सदोम का अधर्म यह था कि वह अपनी पुत्रियों सहित घमंड करती, पेट भर कर खाती और सुख चैन से रहती और दीन दरिद्रों को न संभालती थी। We all know about Sodom and Gomorrah. What were the sins of Sodom and और Gomorrah? सदम गमोरा का जो पाप हम सभी जानते हैं, But behind that sin were these things. और उस पाप के पीछे यहाँ पर कुछ है जो यहाँ पर है। That she was arrogance, सबसे पहले इंग्लिश में जैसे लिखा है कि वो बलवा करने वाली थी, she has abundant of food, बहुत पेट भर कर खाना था, she was careless, और बहुत ही केयरलेस वो थी, and she didn't help the poor and the needy. और दीन दरिद्रों गरीब जो थे उनको उसने सहायता नहीं की थी। And Paul also says in Philippians 3:19, और फिलिपियों की पत्री 3:19 में भी पौलुस इस प्रकार कहता है, whose end is destruction, whose God is their appetite, and whose glory is in their shame, who set their minds on earthly things. उनका अंत विनाश है, उनका ईश्वर पेट है, वे अपनी लज्जा की बातों पर घमंड करते हैं और पृथ्वी की वस्तुओं पर मन लगाए रहते हैं। See, our stomach can be our God. और देखिए आप पे कि अपना हमारा जो पेट जो है वो हमारा परमेश्वर बन सकता है। How a stomach can be our God? और हमारा पेट कैसे परमेश्वर बन सकता है? Brother Zach explains this very nicely. और भाई जैक ने बहुत ही अच्छे से इसको समझाया है। That we are a slave to eating tasty foods. और हम जो है वो स्वादिष्ट खाने के आदी बन जाते हैं या उसके गुलाम बन जाते हैं। And how we can know that we are a slave to food? और कैसे हम इस प्रकार इसको जानेंगे कि हम अच्छे स्वादिष्ट खाने के गुलाम बने हैं या नहीं, कैसे जानेंगे? And one of the day when your wife is cooking and if she forgets to put salt in the curry, और एक दिन आपकी पत्नी अच्छा खाना बनाती है लेकिन उसके अंदर नमक डालना भूल जाती है, so that if you're getting angry and shouting at your wife and using bad words for her, that shows that you are a slave to food. और यदि उसके कारण आप नाराज हो जाते हैं और नाखुश होकर अपनी पत्नी के ऊपर आप चिल्लाने लग जाते, अच्छे शब्दों का प्रयोग नहीं करते, ये दर्शाता है कि आप आपके पेट के स्वादिष्ट भोजन के आदी या गुलाम बन चुके हैं। Thank God for showing me this. और प्रभु का मैं धन्यवाद करता हूँ ये मुझे दर्शाने के लिए। I really prayed to God, Lord, help me to defeat this habit and help me that I would overcome being slave to food. और प्रभु इस आदत को, प्रभु मुझे इसके ऊपर विजय पाने के लिए प्रभु मेरी सहायता कर, जो आदि जो मैं बन चुका हूँ प्रभु उसके ऊपर मैं विजय पा सकूं। And God helped me
और प्रभु ने मेरी सहायता की है। And really, I was, through that also, I was able to overcome the sexual desires in my life. और सच में वास्तविक में उस हालात पर विजय, उस बात पर विजय पाते हुए मैंने अपने लैंगिक पापों के ऊपर विजय प्राप्त की। Like it says about Sodom and Gomorrah, that one of the reason for them to sin was they have abundant of food. और सदम और गमोरा के पाप का कारण वहां पे लिखा है कि बहुत भरपूरी के साथ उनके पास भोजन बहुत ज्यादा था। And they never used to fast because there was abundant of food. और वहां पर कभी उपवास ही नहीं करते थे क्योंकि भरपूरी के साथ इतना भोजन उनके लिए उपलब्ध है। And in my life also, it was very difficult for me to fast. और मेरे जीवन में भी बहुत ही मुश्किल था कि मैं उपवास को करूं। But after listening to Brother Zach, और भाई जैक को सुनने के बाद and the root cause of my sin, और मेरे पाप का जो कारण जो था, जो उसका जड़ जो थी, I again prayed God and asked help me to fast at least once a week or once a month. और प्रभु मेरी सहायता कर कि प्रभु सप्ताह में एक बार या महीने में एक बार तो प्रभु मैं उपवास रख सकूं प्रभु। And God really helped me, and I started fasting, and it really break my habit of being a slave to और food. प्रभु ने मेरी सहायता की उपवास को करने के लिए उससे मेरी सहायता हो ताकि मैं उस बात के ऊपर विजय को प्राप्त कर सकूं। And there God give me victory over other sins और also. उसके बाद प्रभु मुझे अन्य पापों के ऊपर भी विजय करना आरंभ करता है। See, the first temptation for our Lord Jesus Christ was regarding food only. If you read in Matthew 4. और मत्ती 4 के अंदर यीशु मसीह के परीक्षण के बारे में यदि पढ़े तो पहला परीक्षण यीशु मसीह ने जो सामना किया वो भोजन के संबंध में ही था। And Esau also sold his birthright just for one porridge of dal or what. और एसाव ने भी वहां पर हम देखते हैं कि उसने अपना जो जन्म का सिद्ध अधिकार जो था उसने उस दाल या जो भोजन जो है उसके लिए उसने वो कटोरे में पाए जाने वाले भोजन के लिए बेच It दिया। was just one bowl of porridge. और वहां पर थोड़ा सा भोजन था, दाल था उस कटोरे के अंदर उसके लिए। When he seek to get it back, he was not able to get it जब back. उसने उसके बाद उसको उस आशीष को वापस प्राप्त करने की कोशिश की, उसको वो अधिकार प्राप्त नहीं हुआ। So see, food, if it becomes our God, how danger it is. और देखिए कि जब खाना जब हमारे लिए एक वो गुलाम, जब उसके हम गुलाम बन जाते हैं तो कितना खतरनाक वो हो सकता So है। really God taught me through this verse that I should be very careful after preaching to others. I should not be disqualified. मुझे बहुत ही सावधान रहने की जरूरत है ताकि अन्यों को प्रचार करते हुए कहीं मैं निकम्मा ना बन जाऊं। And yesterday also, God really taught me when brother and me were going through that Atal Bihari Setu. और जब कल मैं और भाई जो अटल सेतु जो एक जो ब्रिज जो बना है उसके ऊपर से जब हम सफर कर रहे थे, यात्रा कर रहे थे, And the road was really smooth and we were talking and going. और जो रोड जो था बहुत ही स्मूथ था, अच्छा था, हम लोग बातें करते हुए गाड़ी में जा रहे थे। And where we want to go to reach our destination, we just took a one wrong turn. और जब जहां को हमको जाना था, जहां हमारी मंजिल जहां पर जाना था, एक गलत हमने टर्न वहां पर ले लिया। And to come on the right path, we have to go very long, around 5 to 6 kilometers, and come back on the right वो path. गलत टर्न ले लिया, इसके कारण से वो सही रोड पर आने के लिए हमको 5-6 किलोमीटर लंबा यात्रा करके आना पड़ा उस सही रास्ते में आने के लिए। And when brother and we were talking, brother said that it's a good lesson for us. और जब मैं भाई से बात कर रहा था, भाई ने मुझे बताया कि अच्छा पाठ हमारे लिए ये है That in our spiritual life also, when we take one wrong decision by becoming careless, और यही हमारे आत्मिक जीवन के अंदर जब हम एक छोटा सा निर्णय लेते हैं सावधान न रहते हुए हमारे जीवन में, so to come back on the right track, it can take really great amount of time. और वहां से एक सही रास्ते में आने के लिए तब हमारे लिए एक लंबा समय लग सकता है। So better we should be careful always and have these practical advices in our life, and we should be careful in our spiritual life that we should not take a wrong decision and we should not take sin lightly. और इसलिए हमें सावधान रहने की जरूरत है कि हम हमारे जीवन के अंदर सावधानी बरतें और हम उन सारे निर्णयों में सावधानी रखें ताकि हम उन बातों के ऊपर विजय प्राप्त कर सके। The third thing is pride of life. और तीसरा जो है जीविका का घमंड। 1 Peter 5 verse 5. पहला पत्रस 5:5। You younger man likewise be subject to your elders, and all of you clothe yourself with humility towards one another, for God is opposed to the pride but gives grace to the humble. हे नवयुवक को तुम भी प्राचीनों के अधीन रहो, परंतु तुम सबके सब एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता से कमर बांधे रहो, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है पर दीनों पर अनुग्रह करता है। See, this pride is also a very dangerous thing in our spiritual और life. हमारे आत्मिक जीवन में ये घमंड जो है बहुत ही खतरनाक चीज है। Brother Isaac says that the first sin which was committed was not adultery, was not murder,
or not any other sin, but the first sin was pride. और भाई जैक जिस प्रकार कहते कि पहला पाप जो कोई व्यभिचार नहीं था या कोई हत्या खून नहीं था, लेकिन पहला पाप जो आरंभ होता है वो घमंड से शुरुआत होती है। Because to overcome the sinful habits in our life, we need God's grace. क्योंकि हमारे जीवन के अंदर पापमय आदतों पर उस विजय को पाने के लिए हमें परमेश्वर का अनुग्रह चाहिए। But God, here the verse says that God opposed to the proud. वचन कहता है परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है। And if I am proudful for anything in my life, I will not receive God's grace. मेरे जीवन में पाई जाने वाली किसी भी बात के लिए यदि मैं घमंड करता हूं तो मुझ पर प्रभु का अनुग्रह नहीं प्राप्त It होगा। could be my talent, मेरा तालंत हो सकता है, it could be my looks, मैं कैसे दिखता हूं, मेरा वो हो सकता है, it could be my way of speaking, मेरा बोलने का तरीका हो सकता है, it could be God is using me to share His word. और प्रभु मेरा इस्तेमाल करता है प्रभु को बांटने के लिए, वो हो सकता है। So if pride comes, I immediately will fall from God's grace. यदि घमंड मेरे जीवन में आ जाता है तब तुरंत ही प्रभु के अनुग्रह से मैं गिर जाऊंगा। And Brother Zach says that one thing where we can understand that we are fallen from grace. और एक भाई जैक इस प्रकार से कहते हैं कि हम अनुग्रह से गिर चुके हैं, वो कैसे हम जान सकते, वो ये है Immediately when you fall into sin, just check that where you have fallen from grace or where pride has come in your life. जब कभी आप गिर जाए तुरंत आप जांचे कि कहां से मैं अनुग्रह से गिरा हूं, कहां पर वो घमंड भरी स्थान से मैं गिरा हूं, वहां पर अपने आप को जांचे। So I remember the one time when I went for my friend's sister marriage to Goa. और जब मैं गोवा के अंदर मेरे एक मित्र है उसके बहन के शादी में मैं गया था, So I really I was going for exercise and I really become slim and really was looking good. और वहां पर मैं एक्सरसाइज बहुत ज्यादा करने लगा, स्लिम लगने लगा और थोड़ा अच्छा दिखने लगा मैं। So I had the one blazer which was very old. और जब मेरे पास एक ब्लेजर या कोट जो था जो बड़ा पुराना सा था वो, And when I wear that, और जब मैं उसको पहनने लगा it was really looking good on me. और मेरे ऊपर बहुत अच्छा वो ब्लेजर कोट अच्छा लगने लगा। And in the mirror I look and see, oh, what a handsome man I am. और मिरर में देख के लगने लगा बहुत सुंदर, बहुत ही हैंडसम व्यक्ति में लग So रहा I हूँ। said that I went to the marriage. और मैं वो कह के अपने आप को कहकर मैं मैरिज में जाता हूँ। The marriage was over and when I was returning back, और मैरिज तो वहां पर समाप्त हो गया। जब मैं वापस लौट रहा था, I was on the bus stop. बस स्टॉप पे मैं खड़ा था। I sat when the bus came, I sat in the bus and I remember that I have not taken a water bottle. और जब मैं बस में बैठ गया, बस आने के बाद फिर मैं भूल गया कि मैं पानी का बोतल लेना मेरा रह गया है। So I went to the shop. I paid him the money, but I forgot to take the bottle. और वहां पर मैं पैसा पानी के लिए गया तो था, वहां से मैंने पैसे लिए, बल्कि पानी का बोतल लेना मैं भूल गया। And without the bottle, I come and again sit back in the bus. और पानी को लिए बिना मैं वापस आकर बस में बैठ जाता हूँ। And I remember, oh, I have given the money, but I have not taken the bottle. और मुझे याद आता है कि मैंने पैसे तो उस बोतल के दिए उस दुकान के अंदर, लेकिन मैं बोतल लेना भूल गया। Then I went back to the shop. और मैं वापस दुकान में जाता हूँ। So there was a young child about 15 or 16 years who was selling that those और bottles. वहां पर एक लड़का जो 15-16 साल की उम्र का था जो उस वहां पर बेच रहा था दुकान के I अंदर। tell him that, boss, I have given you the money, but I have not taken the bottle. मैंने उससे कहा कि भाई मैंने तुम्हें पैसे दिए लेकिन मैं बोतल पानी का लेना भूल He गया आपसे। told, no, uncle, you have taken the bottle. नहीं, वो मुझसे कहने लगा नहीं तुम बोतल भी लेकर गए हो। But I'm telling, no, yaar, if I would have taken, I would have not come back. मैंने उसको कहा अगर मैंने बोतल लेकर गया होता तो मैं वापस क्यों आता तेरे पास। But he was not listening to me, मुझे सुन ही नहीं रहा था। and I become so angry. मैं बहुत क्रोधित हो गया उसके ऊपर। I went to the next shop. दूसरे दुकान पर मैं जाता हूँ, I buy the bottle. वहां से मैं बोतल खरीदता हूँ। I came and show him, see, if I would have taken the bottle from you, I would have not buy this one. मैं उस भाई को वापस लेकर बताता हूँ कि देख भाई मैंने जो बोतल यदि तुझसे ले ली होती तो बाजू के दुकान में जाके दूसरी बोतल में नहीं खरीदता पैसे डाल के, And for this you have to pay. और इस बात के लिए तुमको चुकाना पड़ेगा। And in that anger, I cursed him and I came back and sit in the bus. और उस बात के बाद मैंने वो क्रोध के अंदर उसको कुछ ऐसा कहा और उसके बाद मैं वापस बस में आकर बैठ जाता हूँ। But sitting in the bus, I was really feeling uncomfortable. लेकिन बस में बैठकर मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा था, अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। My peace was gone. मेरी शांति जा चुकी थी। And I immediately start praying like, Lord, why it happened? और प्रभु मैं प्रार्थना करने लगा, प्रभु ऐसा क्यों हो रहा है। This God immediately remind me what I have told to the, just for 20 rupees, I have cursed that boy. और मैं प्रभु मुझे याद दिलाता कि 20 रुपए के लिए मात्र मैंने उस भाई को, उस जो लड़का था उसको मैंने कर्ज किया। And I really ask forgiveness from the Lord, and I start asking him, Lord, why I have fallen from your grace? और प्रभु से मैंने माफी मांगी, प्रभु मैं क्यों तेरे अनुग्रह से गिर गया प्रभु। And there God reminded me that in the mirror I look and see how handsome I am. और प्रभु ने मुझे याद दिलाया कि देख
उस आईने के सामने तो बहुत ही सुंदर अपने आप को देख रहा था And और that- उस बात को लेकर Because of your looks, that pride came in your और heart. उस अपने आप का दिखावा जो तू घमंड कर रहा था उस कारण से तेरे अंदर एक घमंड आ गया। And in that verse only, I asked forgiveness to the Lord, and I say, Lord, whatever I've told to that boy, nothing bad should happen to him. और- I take my words back, and please forgive me और also. उस बस के अंदर मैंने मन फिराया, प्रभु से कहा मुझे क्षमा कर, जो भी मैंने उस लड़के को जो भी कहा उस शब्दों को मैं वापस लेता हूं प्रभु। I cannot go back and ask forgiveness from him, but with my heart I forgive him and I ask forgiveness from you, Lord. और प्रभु मैं अब जाकर तो उसको कुछ बोल नहीं सकता, लेकिन मेरे हृदय के अंदर प्रभु मैं उसको क्षमा देता हूं, मांगता हूं। So I thank God for that and reminding me and making me sensitive towards His voice. और प्रभु का मैं धन्यवाद करता हूं कि उसकी आवाज के प्रति मुझे संवेदनशील बनाने के लिए। So really, this practical advice once again God reminded me. और एक व्यवहारिक जो सलाह जो परमेश्वर ने मुझे और एक बार याद दिलाया, I thank God प्रभु का धन्यवाद करता हूं that you warned me that if I am sharing now from the word and God has given me the responsibility, so I should not take sin lightly. और यदि मैं यहाँ पर वचन को खड़े रहकर बोलता हूँ, इस जिम्मेदारी को लेता हूँ, तो मुझे पाप को मेरे जीवन के अंदर हल्के से नहीं लेना है। I should follow these disciplines in my life. ये सारी अनुशासित जो डिसिप्लिन जो है मेरे जीवन के अंदर उसका पालन करना मुझे है। Because as Paul says, after preaching to others, I myself should not be जैसे disqualified. पौलुस कहता है अन्य लोगों को प्रचार करते हुए कहीं मैं निकम्मा या अयोग्य न ठहरूं। I thank God for that. प्रभु का मैं धन्यवाद करता हूँ।